best motivator every time. Every time. I mean, so to be fair, every time I lose a match, I'm a human being. You put in so much hard work, and you just come up short. And then you have a whole team of like coaches and everyone who is expecting a lot from you. So I think for the first 1 or 3 hours, actually 3-4 hours after losing, it's the most horrible feeling in the world. And you just have, there's no way out of it. You have to experience it. You can't shut it or stop it. You have to let go. And what really helps is also to write down in that moment. Like I've started, like I just opened my phone right after the match, like an hour, 2-3 hours, and I write down exactly what I experienced in the match. Because what's good is that the self-reflection for me has started earlier to take me a day or 2 days to reach this point where I could reflect on the match. Now within the first 3 hours, I know this is something that's going to happen again and again in my career, and I just want to make the most of it, yeah. So I think it's really important to keep a little bit of level-headed even though you're really sad. And what really helps is taking a day off. So taking time off, and then automatically you feel from within, okay, now I'm ready to get back. So if you keep going, you burn out. You need to give yourself time to refresh so that you can come back stronger and more motivated. That's how I like to deal with it. Yeah, because just like Tanvi said, I feel like attention to detail is very important. For me, emotions are very important, but on the competition field, इमोशंस को मैं बिल्कुल नहीं आने देता अपने. अगर मैं हार रहा हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न है, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो उसके पीछे कोई रीज़न है. कहीं ना कहीं कोई नींद ठीक नहीं हुई या कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हर चीज़ का मेरे पास डेटा है. मैं आप भी मतलब अकाउंटिंग के लोग हैं, तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है. तो इसीलिए फॉर मी आई लाइक टू कीप अ डेटा पॉइंट फॉर एवरीथिंग. जस्ट लाइक शी सेड, जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट. जैसे आप स्लीप कर रहे हो, सो रहे हो, तो कितने घंटे की नींद हुई, कितना पानी पिया, स्लीप में कौन से फेजेस में आप गए, ज़्यादा स्लीप हुई, ज़्यादा स्लीप नहीं हुई. तो बहुत सारी चीज़ें आप डेटा पॉइंट को ट्रैक कर सकते हो. मुझे वो सब करना बहुत पसंद है. एक तो मैं एनालिटिकल माइंड है, तो मुझे पसंद है वो सब करना. तो जब अच्छा होता है तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है और मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा. अगर ख़राब किया तो ठीक है, अगली बार अच्छा हो जाएगा. और ख़राब क्यों किया वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दुखी हो के वो ठीक है, मतलब 1-2 दिन सबको होता है, नेचुरल है, ह्यूमन फीलिंग. बट you have to know how to jump out of it and get back onto it if you want to keep going. But coming back to your point sir, वो जो white board है उसमें मैं पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ. I have a small diary जो इतनी पुरानी फटी पुरानी उसकी हैबिट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसी में लिखना पसंद है. because I have data points from 2014 in that, कि उस समय जब मैं शायद अच्छा कर रहा था, और या उस समय इस कंपटीशन में अगर ये अच्छा हुआ, so what was the reason behind it, how was I feeling the day before, what happened 2 days before that. I can go back and look and read, and then I can apply it in 2024 maybe to get that feeling of what I felt that day. Maybe if I can do something similar, I feel something similar, because it's all in the mind. तो अपने माइंड को जैसे उसमें ऑल इज वेल बोलते हैं, तो वही वाली बात है कि आप वो ऑल इज वेल बोलते हुए चलते हैं. सर पहले आपने जो आपका जो नेशनल रिकॉर्ड है, आई थिंक हाई जंप में है ना, फिर आपने इसको स्विच करके आप डिकैथलॉन रेस में मतलब कैसे किया, कुछ रीज़न या फिर या मतलब 2016 में मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था मेंस का, और तब मैं 17 साल का था. और उसके बाद 2016 से लेके 2019 तक मैंने उसी नेशनल रिकॉर्ड को 3-4 बार बेहतर किया. और 2019 से लेके तो एक तरीके से देखा जाए तो 2017 से लेके 2020-21 तक उसी के आसपास वाले रेंज में था मैं. जो कर सकता था मैंने किया, जितनी स्ट्रैटेजी ये वो रिकवरी फलाना ढंग का जो भी चीज़ें होती है मैंने सारी यूज़ की. 230 का जैसे नीरज चोपड़ा बोलते हैं 90 मीटर बैरियर कब तोड़ोगे, राइट. 89 मीटर वो फेंक रहा है, 87 मीटर उसने फेंक दिया, 90 मीटर्स नहीं फेंका. सो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं मेरे से कोई सवाल पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं अपने आप से वो सवाल रोज़ पूछ रहा था कि आई जंप 2 meters and 29 which is 7 feet 6.5 inches. When am I going to jump 2 meters and 30? वो मैजिकल बैरियर है हमारे हाई जंप फील्ड में. मेरे इधर 230 कब होगा, 230 सुबह उठो 230, सोने के लिए जाओ 230, खाना खाओ 230, वही मेरे दिमाग में चल रहा था. तो स्पोर्ट मेरे लिए मज़ा नहीं रहा फिर उसके बाद. सो दैट्स व्हेन आई हैड अ डिस्कशन विद माय कोच कि कहीं ना कहीं मुझे बेहतर होना है. फिजिकली मैं हर बॉक्स हिट कर रहा हूँ, हर पैरामीटर हिट कर रहा हूँ. जो जैसे फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो सारे मॉक टेस्ट में मेरे अव्वल नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं एक्चुअली एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे. तो तब कोच ने बोला कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो पूरी है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप वहाँ पे हो नहीं जितना आपको करना है. सो लेट्स डू समथिंग, लेट्स टेक 2 steps बैक, ताकि आगे जाके आप 4 स्टेप कर सको. लेकिन अभी हम 2 स्टेप पीछे लेंगे एंड वील डू अदर थिंग्स
टू कॉम्प्लीमेंट यू, ताकि आपका माइंड जो है वो बाकी चीज़ों में जाए और यहाँ पे ना जाए, क्योंकि उस लेवल पे जब आप स्पोर्ट करते हैं, जैसे कंपटीशन में आप देखते हैं कि नीरज इज थ्रोइंग 89 मीटर्स, उस दिन वो कोशिश नहीं कर रहे हैं 89 मीटर्स करने की, या सोचते नहीं है कि मुझे 89 मीटर्स करना है, उसी की वो ट्रेनिंग करते हैं। सो द बॉडी नोज व्हाट टू डू ऑन दैट गिवन डे, सो यू हैव टू अलाउ योर बॉडी टू डू इट। वरना यूजुअली हमारा दिमाग जो होता है वो शैतान होता है, और वो कोशिश करता है कि हम वो ना करें, दिमाग में थॉट्स डाल के कि अरे ये हो जाएगा तो क्या होगा, उस दिन ये हो जाएगा तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, हाथ अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, टेक्निक पे थोड़ा वैसे हो गया तो क्या होगा। सो द माइंड ट्राइज टू प्ले ट्रिक्स ऑन यू। हमारे को उसको हटाना है, और उसी की हम ट्रेनिंग करते हैं, पूरे दिन दिन रात मेहनत करते हैं अगर एक चीज़ की, तो उस दिन भी अगर आपको सोचना पड़ रहा है उसके बारे में, तो फिर फ़ायदा क्या है ट्रेनिंग करने का। सो दैट्स व्हाट द कोच टोल्ड मी, एंड आई ट्राई टू डू मल्टीपल थिंग्स। अब धीरे धीरे लॉन्ग जंप में थोड़ा सा करने लगा, हाइट हर्डल्स करने लगा, 4-5 चीज़ें करने लगा, तो फिर सोचा कि चलो 5-6 इवेंट टच हो ही गए, 3 और इवेंट ऐड करो, 10 करके देखते हैं क्या होता है। तो करके देखा और फिर उसमें अच्छा रिजल्ट आने लगा। देन आई स्टक विद इट, 4-5 साल और किया, और देन आई सॉ रिजल्ट्स इन इट। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू नो इट्स मोर अबाउट हैविंग फन दैन अचीविंग अ गोल। आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, और अपस्केल करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही शायद मैंने अपने आप को अपस्केल किया, और अभी मैं शायद एक ही ऐसा इंडियन हूँ जिसके 2 नेशनल रिकॉर्ड हैं फील्ड इवेंट्स में। ऐसा और कोई अभी तक आया भी नहीं है इतिहास में। तो मैंने कभी ये स्टैट्स के बारे में सोचा ही नहीं था, बट वो हो गया। तो और ये भी मतलब ठीक है, एक स्टैट ही है, इसमें कोई खास नहीं है, बट अच्छा है, अच्छी फीलिंग होती है कि अच्छा है। बट आई मीन इट्स Will you make a return to सोच तो यही है पैरिस ओलंपिक्स के लिए वापस हाई जंप में जाने की, ताकि जो मैंने शुरू किया था उसको मैं एक ओलंपियन के ठप्पे से ख़त्म करूं, और फिर उसके बाद पूरा फोकस डिकैथलॉन में करूं। और ये सब मेरे पर्सनल माइलस्टोन्स and the हैं। magical barrier? मैजिकल बैरियर तब होगा तो देखा जाएगा।